Friends, we are going to explain the lesson number 5th of English literature, The Open Window. The Open Window is a funny story. There are three characters, Mr. Nuttall, Stapleton, and the young girl of 15, Vera. So, the main character of the story is The Open Window is Nuttall, who suffers from nervousness. And that's why doctor has advised him to spend a few days in a rural area where you can find yourself in peace. So here, when he reaches the village, he meets a girl named Vera. So the conversation between Vera and Nuttall starts, and this is the beginning of the story. Now let's see and explain the lesson. Now, the conversation is started between two characters. Vera says, "My aunt will be here soon." जब नटेल जाते हैं तो वेरा कहते हैं, मेरी आंट अभी आएगी, said very confident young lady of 15. The girl is of 15 years old and she is confident and she wants to communicate with the stranger, Mr. Nuttall. In the meantime, you must try and put up with me so you can talk with me for a while. Frampton Nuttall tried to say the correct something which should flatter the niece without disparaging the aunt. And he wanted to praise the lady, the 15 years lady Vera, जो वेरा को वो प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है without disparaging the aunt. Disparaging का मतलब होता है saying something to make someone feel less valuable or respected. Who was yet to come, जो आंटी नहीं आई है उससे पहले वो वेरा को खुश करने का प्रयत्न करता है. Privately he doubted more than ever whether these visits to total strangers would do much to help the nerve cure which he was supposed to be undergoing. And he thought that the nerve cure का मतलब होता है a process by which a person who is always very afraid, worried or anxious become better. शायद वो यहाँ पे बेटर फील कर सके, इसलिए यहाँ पे वो आया है और आने की वजह उसका नर्वसनेस है और उसकी बहन है, उसने एक चीट लिख के उसको वहाँ पे भेजा है. I know how it will be, his sister had said when he was preparing to move to his little village. जो अपने वो गांव जाने वाला था तब उसकी बहन ने उससे कहा था, मतलब मिस्टर नटेल की बहन ने उससे कहा था, I know how it will be. His sister मतलब नटेल की बहन ने कहा था, said when he was preparing to move to his village. जो विलेज जाने की जो नटेल तैयारी कर रहा था तब उसकी बहन ने उससे कहा था, You will bury yourself down there and not speak to a living soul, and your nose will be worse than ever from
मॉपिंग। वो कहती वहाँ पे तू स्ट्रेंजर को मिलके थोड़ा नर्वस हो जाएगा। एंड मॉपिंग का मतलब होता है बीइंग अनहैप्पी एंड एक्टिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट पॉजिटिव। और जो तेरी एक्टिंग है, तो जरा तेरी मैनर्स है वो पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। आई शेल गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो दैट। और नटेल की बहन कहती मैं थोड़े लोगों का इंट्रोडक्शन तुझे देती हूँ जो वहाँ पे वो आपको काम आएगा। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। जहाँ पे तू जा रहा है वहाँ के जो लोग हैं और बहुत ही अच्छे हैं और वो आपसे अच्छा बर्ताव करेंगे। नाउ फ्रैम्पटन wondered whether Mrs. Stapleton, the lady for whom he was waiting. Now let's see the new words. Flatter. Flatter means to praise someone to make them feel more important. To praise, प्रशंसा करना. Disparaging, saying something to make someone feel less valuable or respected. Means to say something to make someone feel less valuable or respected. Nerve cure, the process by which a person who is always very afraid, worried and anxious becomes better. तो इलाज होना और आप बेटर फील कर सको। मॉपिंग, बीइंग अनहैप्पी एंड एक्टिंग इन अ वे दैट इज़ नॉट पॉजिटिव। मॉपिंग मतलब जो आप कार्य कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, वो कैसी होती हैं? नॉट पॉजिटिव। नाउ Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady for whom he was waiting, with one of the letters of introduction came into the nice division. So Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady for whom he was waiting, with one of the letters of introduction came into the nice division. Then the lady enters. Do you know many of the people round? So means he is going to meet the lady as his sister has introduced him by the letter. And I think the lady, the sister of Natal, was living there before 4 years ago. Do you know many of the people round here? Asked the niece. Now, Vera was intelligent and confident. Now she wanted to play with her. Natalie found that the person who is not confident and he is mopping. मतलब लड़की को लगा वेरा को कि चलो कुछ करते हैं, क्योंकि सी वॉज, आई थिंक वी कैन से सी वॉज नॉटी एंड सी लाइक्ड टू प्ले मिस्चिफ विद द स्ट्रेंजर्स एंड दैट्स वाई शी स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। डू यू नो, और बाद में वो पूछती कि आप यहाँ पे किसी को पहचानते हो, क्योंकि जो लड़की है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और कह सकते हैं कि वो नॉटी भी है, मिस्चीवियस भी है, क्योंकि वो हमें आगे चैप्टर में पता चलेगा। डू यू नो मैनी ऑफ द पीपल राउंड हियर? आस्क्ड द निस। क्या आप यहाँ पे लोगों को जानते हो? हार्डली अ सोल, सेड फ्रैम्पटन। नो, मैं शायद एक दो को जानता होगा, किसी को नहीं। माई सिस्टर स्टेड हियर एट द रेक्टरी सम 4 years ago। मेरी बहन यहाँ पे 4 साल पहले रहती थी। एंड शी गेव मी द लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। और उसने मुझे ये पत्र दिया है, चीट दी है जिसे वो जानती है। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन द टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। वो खेद के साथ
जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बोलता है, देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। लड़की अब पकड़ लेती है, मीन्स आप मेरी आंट को जानते नहीं हो, क्योंकि आपकी बहन है वो वेरा की आंट को जानती हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं, और यहाँ पे उसके साथ वो मजाक करना चाहती है, बिकॉज शी वॉज ऑफ 15 एज एंड शी वॉज कॉन्फिडेंट एंड bold and wanted to play mischief with the strange person. Then you know practically nothing about my aunt, asked the young lady. अब वो ये कर रही है कि मतलब वो सब इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेती हैं और बाद में उसके साथ मजाक करेगी वो। ओनली हर नेम एंड एड्रेस, सेड प्रेमचंद। ना कि खाली उसका नाम जानता हूँ और एड्रेस जानता हूँ। क्यों? कि यहाँ पे उसकी आंटी है, उसने उसे यहाँ पे भेजा है और वो खुद आया है क्योंकि अपना नर्वसनेस है उसको वो कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शांत वातावरण होता है विलेज में, इसलिए यहाँ पे आया है। और उसकी बहन ने चीट दी है, लेकिन आते ही उसका भाग्य की वो वेरा जैसी एक नोटी लड़की से मिल जाता है। सेड प्रेमचंद। वो बोलता है कि नाम, मैं खाली उसका नाम और एड्रेस जानता हूँ। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज मैरिड और विडो। और देखो ये पागल जैसे लोग होते हैं, वो ट्राइफल थिंग्स, फालतू चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एंड ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सेपल्टन वॉज मैरिड और विडोड। So what a strange thing that is going on his mind. Something about the room seemed to suggest that a man usually occupied it. लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे कोई जो मैन है वो रहता होगा। और ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago। और उसी वक्त वेरा है, उसने एक अच्छा सा टॉपिक अपने मन ही मन में स्टोरी बना ली। अब उसके साथ वो जोक करेंगे, मजाक करेंगे, मिस्चिफ करेंगे। एंड वो कहती हैं अ ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 years ago। वो कहती कि 3 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी सेम्पल्टन की फैमिली के साथ। किसने कहा? वेरा ने कहा। किसको कहा? नटेल को कहा। यू कैन सी हियर Mr. Nuttall and Vera are discussing, and Vera is planning a story how to make fool to Mr. Nuttall. Now let's see the new words. Rectory, a house in which the priest lives. मतलब ऐसी जगह जहाँ पे पादरी रहते हैं, जो ईसाई के संत, जो क्रिश्चियन के संत होते हैं वो रहते हैं। A tone of distinct regret in a voice that showed that he felt that he had made a mistake and was sad about it. Regret मतलब खेद, जो आपने किया उसके लिए आपको खेद है वो। Now the girl started to frame a story in order to amuse herself. And now she says, her tragedy, asked Frampton. क्योंकि जो नर्वसनेस, जो प्रॉब्लम होता है, जो डिप्रेशन में होते हैं, वो ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं। तो जैसे उसने बोला और उसके बारे में पूछने लगा, हर ट्रेजेडी, योर आंट्स ट्रेजेडी। क्योंकि जो नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं वो नेगेटिव बात में ज़्यादा ध्यान देते हैं। Somehow in this restful country, spot tragedies seemed out of place. Somehow in this restful country, spot tragedies seemed out of place. वो बोलता है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसी ट्रेजेडी, क्योंकि कितना अच्छा गांव है। फिर भी अच्छे गांव में
अच्छी जगह पर भी ऐसा हो सकता है। यू मे वंडर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। लड़की बोलती है, वेरा बोलती है और नटेल को बोलती है, आपको पता है ये विंडो है ना, हम हमेशा खुला रखते हैं, क्यों? अब उसने अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने आप को खुद करने का और सामने वाले को फूल बनाने का शुरू कर दिया। सईद दनीश पॉइंटिंग एट द लार्ज फ्रेंच विंडो, जो विंडो है वो फ्रेंच विंडो है, दैट ओपन्ड ऑन टू अ लॉन, और वो लॉन की तरफ खुलता है। और पॉइंट करते हैं, देखो ये जो विंडो है ना, वो हम अक्टूबर के आफ्टरनून में हमेशा खुला रखते हैं, कभी बंद ही नहीं करते हैं। यहाँ से उसने बेज लगाया स्टोरी का, मामू बनाने का, कि क्यों खुला रखते, क्योंकि तुरंत ही नटेल पूछेगा वाई, एंड देन शी विल आंसर। It's quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? देखो अब उसके दिमाग में वही घूम रहा है, उसके दिमाग में वही घूम रहा है। It is quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? But now the man who was mentally ill was thinking about only tragedy that occurred with aunt, and he asked about that what was the tragedy about, and is there any connection with open window and tragedy? क्या ओपन विंडो और ट्रेजेडी के साथ कोई कनेक्शन है? Then out through that window 3 years ago on this very day her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. बाद में जो लड़की है वो स्टोरी आगे बढ़ाती हैं। हाँ, यही दिन था और यही विंडो है जहाँ से आंटी है सेपल्टन, उसके पति और उसके 2 भाई हैं, वो यहाँ से ही अपना शिकार करने के लिए, अपने शिकार को ढूंढने के लिए, शिकार करने के लिए यहाँ से गए थे। आउट टू दैट विंडो 3 years ago, 3 साल पहले, क्योंकि जो ट्रेजेडी हुई थी 3 साल पहले ही हुई थी। एंड ऑन दिस डे हर हस्बैंड एंड हर 2 young brothers went off फॉर their day's shooting. वो शूटिंग करने के लिए या शिकार करने के लिए, जो आंटी थी उसका पति और उसके 2 भाई यहीं से ही इसी दिन पे गए थे। एंड दे नेवर केम बैक, और वो कभी वापस आए नहीं। असल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो स्टोरी बना रही है। वाइल क्रॉसिंग द मूव टू देयर फेवरेट spine shooting ground, they were all 3 drawn in a treacherous piece of bog. The word moor and its meaning is an open area of hills covered with rough grass, especially in Britain. जो ब्रिटेन में ऐसा एरिया है जो हिल का है और ट्री से वो कवर है वो। और बाद में स्नाइप का मतलब होता है बर्ड विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट बिक, ऐसा बर्ड जो जिसकी बिक है वो लंबी होती है, दैट लिव्स नियर ईयर्स। और जो स्नाइप है वो लंबी चोंच वाला और नदी के बाजू में रहने वाला बर्ड है। एंड ट्रेचरस, एक्सट्रीमली डेंजरस। ट्रेचरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली डेंजरस। एंड बॉग, सॉफ्ट वेट ग्राउंड, सॉफ्ट वेट ग्राउंड। मासिस का मतलब प्लेसेस नियर अ लेक और रिवर दैट सी ऑफन फ्लड आर ऑलवेज वेट। सो ये यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ से गए थे और कहाँ गए थे और क्या वो क्रॉस कर रहे थे। वाइल क्रॉसिंग यू मूव टू देयर फेवरेट स्नाइप शूटिंग, जो बर्ड है स्नाइप, उसका शिकार करने के लिए
मूर से वो गुजर रहे थे, तब दे वर ऑल थ्री ड्रॉन इन द ट्रेचरस पीस ऑफ पॉक। जो गिल्ली मिट्टी थी वहाँ पे, जो कीचड़ था, जो भयंकर कीचड़ था, ट्रेचरस, उसमें वो फंस गए। देयर बॉडीज वर नेवर फाउंड। और कहते हैं कि उसकी बॉडी है वो बाद में कभी मिली ही नहीं। दैट वॉज ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट। और वो कहती वो एक डरावना भाग है उस बात का। हियर द चाइल्ड्स वॉइस स्टार्टेड शेकिंग। अब वो नाटक भी करने लगी। हियर द चाइल्ड्स वॉइस स्टार्टेड शेकिंग। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम बैक समडे। और ऐसी आवाज में कि शायद मेरी आंटी इसलिए उसका वेट कर रही है कि शायद वो कभी न कभी आएंगे। वो पागल जैसी हो गई है और हमेशा उसका वेट करती, इसलिए उसने ये विंडो खुला रखा है। देखो कितनी अच्छी स्टोरी बनाई है। और ऐसे ऐसे लोग हैं वो तुरंत ही ऐसी स्टोरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानने लग जाते हैं नेगेटिव। सम एंड दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट इन देम। और उसके साथ एक कुत्ता था, वो भी वहाँ पे वो खो गया। और स्पेनियल दैट वॉज लॉस्ट विद देम एंड वॉक इन थ्रू दैट विंडो जस्ट एज आई यूज्ड टू डू। और वो यहाँ से इसी विंडो से गए थे और इसलिए हमने ये विंडो खुला रखा है। सो फिर से ये रीड कर रहा हूँ। हियर द चाइल्ड्स वॉइस स्टार्टेड शेकिंग। Poor aunt always thinks that they will come back someday. They and the little brown spaniel. They मतलब आंटी के पति और उसके 2 भाई और उसके साथ एक कुत्ता। That was lost with them and walked in through that window just as they used to do. और जो वो यही विंडो से वापस आएंगे जैसे वो पहले वहाँ मतलब यहाँ से ही आते थे। That is why the window is kept open every evening till it is quite dark. तो हम ये विंडो है खुला रखते हैं ताकि जो लोग गए हैं वो यहाँ से वापस आए। Poor dear aunt। और वो प्रिटेंड करते हैं, ढोंग करते हैं कि बेचारी आंटी। She had often told me how they went out। और मेरी आंटी ने मुझे कहा है वो यहाँ से कैसे गए थे। Her husband with his white waterproof coat। और यहाँ पे स्टोरी में और 4 चांद लगा रही हैं जो लड़कियाँ वो बोल रही है। देखो विविड एटमॉस्फेयर, विविड सीन है वो क्रिएट कर रही हैं। और मेरी आंटी के पति मतलब मेरे अंकल कैसे गए थे पता है, मेरी आंटी मुझे बताती है कि उसने क्या पहना था, बेचारे कैसे गए और अब तक वापस नहीं आए हैं। विथ हिज वाइट वाटरप्रूफ कॉट ओवर हिज शोल्डर एंड रोनी हर यंगर ब्रदर। और रोनी उसका यंगर ब्रदर है। सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड। और वो गाना गाता था बर्टी वाई डू यू बाउंड एज यू ऑलवेज डिड टू टीच हर। और वो कहती हैं कि मेरी आंटी मुझे ऐसा कहते कि तुम्हारे अंकल ऐसे कपड़े पहन के गए थे और मेरा भाई है ये गाना गा के मुझे हर रोज़ चिढ़ाता था। मुझे उसकी सब याद आ रही हैं। बिकॉज शी सेड इट एनॉयड हर। और वो इसलिए गाना गाता था कि वो परेशान करने के लिए। बिकॉज शी सेड इट एनॉयड हर, क्योंकि वो गाना गाता था तो मेरी आंटी को वो अच्छा लगता नहीं था, लेकिन वो उसको टीज करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। डू यू नो समथिंग ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। और मुझे ये लग रहा है कि देखो वो इसी विंडो से आ रहा है। शी स्टॉप टॉकिंग विथ अ लिटिल सीवर। और बाद में वो ड्रामा करने लगी। सीवर के साथ उसने बातें करना बंद कर दिया। वो कांपने लगी और बातें करना बंद कर दिया। इट वॉज रिलेटेड टू फ्रैम्पटन। अब जो फ्रैम्पटन डर गया था कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था।
और वो उसको थोड़ी रिलीफ मिली जब गर्ल ने वो विविड डिस्क्रिप्शन स्टॉप किया। When the aunt came into the room and apologized for being late, तभी उसकी आंट है वो अंदर आती है वेरा की और कहती है आई एम सॉरी बीइंग लेट, मैं लेट हुई, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ा, इसलिए मैं क्षमा याचती हूँ। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू सेड, और उसको पता था कि मेरी जो नीस है, मेरी भतीजी है, वो आपको अच्छा अम्यूज़ कर रही होगी, आपको अच्छा एंटरटेन कर रही होगी। आई होप वेरा हैव बीन अम्यूजिंग यू शी सेड, उसको पता है कि वेरा कैसी है। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन, फ्रैम्पटन बोलता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है। आई होप यू डोंट माइंड टू ओपन विंडो सेड मिसेस सैम्पल्टन। और देखो यहाँ पे ऐसा ही बनता है, जो उसने स्टोरी बनाई वैसे ही सैम्पल्टन है वो भी यहाँ पे आके बोलती है कि अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं विंडो खोलूँ। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, अगर आपको बुरा न लगे, आपको अगर बुरा न लगे तो आप ये विंडो खोलिए। और बाद में देखो वहीं से स्टोरी चालू कर देते, माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। यहाँ पे स्टोरी में लिंक बन रही है, जो लड़की ने बोला है वही आन बोल रही है कि तो मेरे हस्बैंड और ब्रदर्स गए हैं, वो यहीं से वापस अंदर आएंगे। अब तो भाई को पता चलने लगा कि वो अब कुछ होने वाला है। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप, स्नाइप मतलब जो लंबी चोंच वाला बर्ड होता है, उसका शिकार करने के लिए गए हैं, और वो यहीं से आएंगे। इन द मासिस, ये विस्तार है वहाँ पे। वासिस का मतलब होता है प्लेसेस नियर लेक, जो नदी के किनारे का या तालाब के किनारे का जो विस्तार होता है वहाँ पे। एंड they have not spine and in a masses today, so they will make a fine mess over my poor carpets। तो वो यहाँ पे आए तो कीचड़ वाले पैर हो गए, तो जो कारपेट है वो बिगड़ेगी, इसलिए वो विंडो से आएंगे। She rattled on cheerfully about the shooting and how many ducks could be found in winter। और बाद में वो फ्रैम्पटन है, वो सैम्पल्टन है, वो बातें शुरू कर देती हैं कि भाई शिकार करने जाते हैं, बाद में इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, और विंटर में तो कितने डक्स मिल जाते हैं, तो अच्छा खाना शिकार मिल जाता है। शी रेटल्ड ऑन चीयरफुली, और खुशी के साथ, अबाउट द शूटिंग एंड हाउ मेनी डक्स कुड बी फाउंड इन द विंटर टू फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन को बताती हैं, और अब फ्रैम्पटन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, और उसके लिए वो भयंकर लग रहा था, डरावना लग रहा था। He made a separate but not very successful effort to turn the talk to the less miserable topic। और बाद में जो टॉपिक था वो चेंज करने का उसने प्रयत्न किया। She rattled on cheerfully about the shooting and how many ducks could be found in winter to Frampton. It was purely horrible. He made a desperate but not very successful effort to turn the talk to less miserable topic। और बाद में वो प्रयत्न करता है less miserable topic, मतलब जो कम डरावना टॉपिक हो उस पर कन्वर्ट होने के लिए जो नटेल है, जो फ्रैम्पटन है, वो प्रयत्न करता है कि ये बात बंद हो और कोई दूसरी बात हो। बट ही सो दैट मिसिस सैम्पल्टन, लेकिन उसने देखा कि मिसिस सैम्पल्टन वॉज गिविंग हिम ओनली अ पार्ट ऑफ हर अटेंशन, लेकिन वो उसकी बात सुन रही नहीं थी और अपनी ही बात किए जा रही।